let's try to understand now what is reserve stock, buffer stock, safety stock. In fact, आप देखो मैं आपको बताता हूं जो ओंकार ने बोला है उसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूं कि रिजर्व स्टॉक, बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक जरूरी है। आप अगर प्रैक्टिकली कोई भी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम को अभी आप देखो तो उसमें आप देखोगे कि कई तरह की अनसर्टेनिटी उसके साथ है। ये अगर आप एफजी डिस्पैच कर रहे हो कस्टमर के लिए उधर भी लागू है। ये अगर आप प्रोडक्शन लॉट में जो प्रोडक्ट अभी शामिल है उसमें भी लागू है। जो प्रोडक्ट आप सप्लायर से मंगवाते हो उसके लिए भी शामिल है। कैसे? इसमें पहला अनसर्टेनिटी जो मैं कहूंगा इज टुडेज अनसर्टेनिटी इन ट्रांसपोर्टेशन। कि पहले तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि ट्रांसपोर्टर से कि so and so date, so many trucks will be coming. Suddenly you find that there is a unprecedented or there is a declaration related to some strikes or some road jam or something like that, or problem with the vehicle, so the transport does not arrive in time or it gets delayed. So do you have to really keep a provision against that? मैं हमेशा सोचता हूं कि इसमें ये सब है हाईली प्रोबेबिलिस्टिक, बट एट ए प्लेस जहां पर ये सब अनसर्टेनिटी हमारा डे टू डे काम का एक हिस्सा बन जाता है, it will be not right, prudent to not to consider the backup against this kind of uncertainty. Otherwise you will be really losing your face and your brand image will go down. Second, changes in consumption rate. Changes in consumption rate क्यों हो सकता है? First of all, that if your customer suddenly, जो कई बार आपने देखा है कि शाम को फोन आ जाता है कि क्या अर्ली मॉर्निंग फोन आ जाता है, जो ऑर्डर आज के लिए है उसको थोड़ा सा रुकवा दो, दूसरा आइटम जो है उसको आप लाओ, तो आपका कंजम्पशन रेट पहले जो एस्टिमेटेड किया हुआ है वो पूरा चेंज हो जाता है। एंड दैट हैपेंस सो फ्रीक्वेंटली दैट यू आर विक्टिम ऑफ दैट। Then delivery delay from the supplier due to manufacturing uncertainty. हमारा जो प्रॉब्लम है अपने फैक्ट्री में वही प्रॉब्लम सप्लायर का भी है, शायद ज्यादा है उनके पास क्योंकि वो शायद इतना ऑर्गेनाइज भी ना हो, तो उसके लिए भी उनका जो फेलियर होता है प्रोडक्शन प्लान वर्सेस एक्चुअल, या तो डिलीवरी प्लान वर्सेस एक्चुअल, उसका रिफ्लेक्शन आपका भी इनकमिंग एरिया में आएगा। Then another big point is non-conformities in quality. How many times you have faced that not only quality also in quantity, that जो material incoming stage में आपको मिल रहा है, suddenly you realize that after checking that several quantity is not conforming, वो उसमें बहुत सारे rework और non-conforming rejectable item मिल रहा है, under deviation भी मिल रहा है, तो you need some compensation against that also. Or there are more unforeseeable issues which may cause shortage. तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बोला, these all are basically reasons for designing a proper safety stock, जिसको आप रिजर्व या बफर भी बोल सकते हो, बफर स्टॉक पर्टिकुलरली। मैं इधर एक पॉइंट बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं, मैं इधर स्पेकुलेटिव स्टॉक के बारे में नहीं बोल रहा हूं जो ओंकार ने रेफर किया एज स्ट्रेटेजिक स्टॉक। Strategic stock, I would request you to take it out because many times you do it. I won't debate that point. There may be really valuable, sometimes information coming to you, particularly for say copper or such kind of metals actually, where we have seen huge fluctuation in the pricing. And if you know that it is likely to go up, I don't see anything wrong in procuring that. But that is beyond the scope of inventory management. So I would respectfully exclude that from our discussion. So rest of the things, yes, we would like to take it up. So I am saying that in today's condition, there is a reason कि आप safety stock को ठीक से with due consideration इसको design don't consider a 10% or 5% kind of thing. Okay, now another definition.
what is called minimum order quantity. इसको आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ कंफ्यूज मत कीजिए. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो पहले बताया गया था, दैट इज वाज डन अर्लियर इन ए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. मैं अभी जो बोल रहा हूं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें दो चीज है. लेट अस अंडरस्टैंड दैट एक के बाद एक. मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं हम. इट इज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द पार्ट्स बिलो व्हिच सप्लायर ओन्ड सप्लाई. क्योंकि कई सप्लायर ये मान के चलते हैं कि हमारा जो रोलिंग मिल चलता है, या तो हम जो फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं उसके साथ एसोसिएटेड जो सेटअप्स हैं, वो मिनिमम अगर इतना ऑर्डर आप दोगे या तो बैच साइज आप डिलीवरी के लिए बताओगे तो ही हम उसको डिलीवरी दे सकते हैं. नहीं तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और मेरा जो लेबर है उसको मेरा जस्टिफिकेशन में नहीं आएगा. तो उसीलिए वो इंसिस्ट करते हैं एक मिनिमम ऑर्डर साइज. तो दिस इज द फर्स्ट practical consideration for MOQ, which normally is defined by your supplier. Now, some cases you will find that minimum order quantity is not valid. The supplier is in a position to supply even one quantity. That is also there. Consumable के लिए तो होता ही है, लेकिन even otherwise also in today's context, it is possible. And you also would prefer, आप भी प्रेफर करोगे कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जितना कम हो सके उतना हम प्रोक्योर करें फॉर मीटिंग माय इमीडिएट प्रोडक्शन प्लानिंग रिक्वायरमेंट. तो उसके लिए भी आजकल का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मिल्क रन में हम एक ही व्हीकल मल्टीपल सप्लायर के पास से होते हुए वो फाइनली फैक्ट्री को वापस आता है. एंड उसमें हम लोग देखा है टोयोटा बैंगलोर भी ऐसे कॉन्सेप्ट, इवन दिल्ली वेस्ट वेंडर से मिल्क रन करवा के एक सिंगल ट्रक में लोड करके दिल्ली से बैंगलोर तक लाते हैं, जो कि 5 दिन का दूरी है. एंड दे आर डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली. दे हैव बीन डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली. तो इट इज वेरी मच पॉसिबल टू मैनेज इन स्मॉल क्वांटिटी. बट इवन इफ सप्लायर डिमांड्स एंड यू हैव नो अदर वे कि आपको वो सप्लायर से मटेरियल लेना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू रेस्पेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. ये हो गया पहला. दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज द क्वांटिटी नीडेड, अगेन मार्क माय वर्ड्स, इट इज द क्वांटिटी नीडेड टू कैरी आउट प्रोडक्शन एज पर रोलिंग प्लान नंबर ऑफ डेज. मैं रोलिंग प्लान नंबर ऑफ डेज के बारे में आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि दैट इज व्हाई आई सेड दैट ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ये प्रोडक्शन प्लानिंग कॉन्सेप्ट, ये दोनों एक साथ चलता है. आप कभी भी प्रोडक्शन प्लानिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट को अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक के हिसाब से डील नहीं कर सकते हो. इट इज नॉट पॉसिबल. जैसे डिस्पैच प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, इनकमिंग प्लानिंग, आप ये तीनों को इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हो. दे आर सब्जेक्ट्स व्हिच आर टू बी टेकन अप टुगेदर. So similarly, inventory management and production planning has to be considered together. Production planning का मतलब integrated planning, production planning के अंदर all three आता है. कौन सी तीन? Dispatch planning, production planning and incoming material planning. तो इसमें आप लोग normally क्या करते हो? I'll tell you. You do you get, many of you get actually a broad tentative quarterly plan from the customer. And then over and above that, you get monthly farm plan. Monthly farm plan बोलते हैं, लेकिन ये फार्म नहीं है, क्योंकि मेरा डेफिनेशन फार्मनेस क्या है? फार्मनेस ऑफ प्लान मेरे डेफिनेशन में जहां पर ऑर्डर डेट, ऑर्डर क्वांटिटी, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स आर एक्चुअली मेंशन्ड एंड दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर फ्रोजन. Yes, there are one or two customers I have seen who follow that. And you are lucky if your customer is like that. But I hope that increasingly customer and supplier both will fall in line. There is no other way. Everybody have to fall in line with this concept because of the flexibility in the demand pattern in today's condition. So rolling plan kya hai? Rolling plan is based on these customer requirement. You decide how many days of production plan you be rolling time to time.
So I am not suggesting, I repeat, I am not suggesting you to continue with your weekly production plan. That is absolutely not correct what you are doing. Yes, I know what I am saying, but I can take up questions for that. मेरा सजेशन है, अगर आपका थ्रूपुट टाइम के हिसाब से और कस्टमर का असॉर्टेड मिक्स ऑफ लॉट के लिए आपका टोटल थ्रूपुट टाइम 7 दिन का है, टोटल थ्रूपुट टाइम 7 दिन का है टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी फॉर डिस्पैच अगेंस्ट ए पर्टिकुलर शिपमेंट ऑर्डर, तो मैं कहूंगा you go ahead for a 7 days rolling. 7 days rolling मतलब क्या है? हर day you are planning the next 7 days. If you are lucky, you don't have that kind of throughput time, like heat treatment, etc., are not involved. Maybe you are happy with the 3 days rolling plan. That will be manageable also. In that case, you continue to doing 1 plus 3 days rolling plan. आज another 3 दिन का extra forward. कल another 3 days forward. परसों another 3 days. 3 days means operating days. And that actually is far more practical, manageable. But how many days you want to roll, that actually you need to decide. Kabhi, if the customer order changes, specification changes, the material requirement changes, हो सकता है थ्रूपुट टाइम आपका बढ़ जाए, और थ्रूपुट टाइम बढ़ जाएगा तो आपका रोलिंग प्लान का नंबर ऑफ डेज उस केस में, वो पर्टिकुलर केस में थोड़ा एडवांस लेना पड़ेगा. But your basic rolling plan, until and unless अगर आपका प्रोडक्ट या पार्ट का कैटेगराइजेशन सेम है, तो उसमें रोलिंग प्लान का नंबर चेंज नहीं होता है. सो दिस इज वन पॉइंट जहां पर मैं हर सीईओ को और प्रोडक्शन प्लानर को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डिसाइड बेस्ड ऑन थॉरो एनालिसिस ऑफ थ्रूपुट टाइम एंड द असॉर्टेड लॉट प्लानिंग, जो हम लोग हेजुंका में डील करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. तो इसको डिसाइड करना जरूरी है. और थ्रूपुट टाइम के एनालिसिस के बारे में, फ्लो लाइन का कैसे डिजाइन किया जाता है और एस्टिमेट किया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे ऑन मॉड्यूल नंबर 11, आई एम सॉरी मॉड्यूल नंबर 12. तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस. तो रोलिंग प्लान नंबर ऑफ डेज के लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप डिसाइड करो, क्योंकि उसके नीचे अगर आप प्रोक्योर करोगे यू विल लैंड अप इन शॉर्टेज. सो whichever is on the higher side, wo from your angle you say that is my minimum order quantity. So if the supplier dictates the minimum order quantity which is more than the rolling plan number of days, kya karenge aap you have to digest, actually you have to just tolerate him and order for higher MOQ quantity, though you don't need it, but you know probably concede to this thing, knowing that will lead to your extra stock. But till such time you find an alternate solution, you have to continue with that. So that is MOQ. It is different from the MOQ concept that you normally hear. Let's understand lead time. What is called lead time, which is fairly straightforward definition. Everybody understands that. मैं इसको फिर दोबारा रिविजिट करूंगा इन द नेक्स्ट सेशन, सॉरी ऑन 12th मॉड्यूल नंबर 12. सो कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम, इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है. एक आता है प्रोक्यूरमेंट लीड टाइम और एक आता है प्रोडक्शन लीड टाइम. तो प्रोक्यूरमेंट लीड टाइम क्या है? इट इज द नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द सप्लायर टू सप्लाई मटेरियल आफ्टर ही रिसीव्स द परचेज ऑर्डर. तो घड़ी चालू हो जाता है जब सप्लायर को एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ मुझे इतना क्वांटिटी, ये पार्ट नंबर मुझे चाहिए, ये एंड देन द नंबर ऑफ डेज. तो उसके लिए भी वो सारी चीज एप्लीकेबल है जो आपके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम, हिज बॉटलनेक एरिया, हिज अदर लोड, एवरेज डिमांड पैटर्न एटसेट्रा, एंड द शटडाउन्स, ऑल दीज थिंग्स ही इज आल्सो फेसिंग. तो ही इज आल्सो फेसिंग इन बिटवीन क्यूइंग टाइम. तो उसके लिए उनका जो प्रोक्यूरमेंट लीड टाइम है वो हिसाब में लाना बहुत जरूरी है. एंड नेचुरली आपके लिए जो सप्लायर का कंसिस्टेंट प्रोक्यूरमेंट लीड टाइम है और जो कम हो, दैट काइंड ऑफ सप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. So that is why supplier is integral part of your production process actually. What is production lead time? Same definition.
as you have given the definition for your supply, वही definition आपके लिए भी applicable होगा. क्या है? Production lead time is the number of days needed by the manufacturer, that is you, to supply the material to your customer after the purchase order is received. तो वो सारे problem जैसे breakdown, bottleneck machine, queuing time in between, order processing time, production planning time, ये सब सारी चीज जो है, and then the processing time comprising of the individual operation cycle time, ये सब मिलके the lead time is considered. So lead time is very important for inventory management. Inventory management for both FG as well as for incoming material inventory management. दोनों के लिए lead time का concept important है. So up definitely you are able to recognize that how important this entire concept, with regard to your data collection and analysis के बिना ये नहीं हो सकता है. Now the point is that हम लोग हमेशा data collection के लिए past data use करते हैं, लेकिन हम जब inventory management के बारे में बात करते हैं तब हम current order जो अभी करना है उसके ऊपर नजर ज्यादा देते हैं. Only for determining the reserve stock or buffer stock, we take care also the past incidences, like ये ट्रांसपोर्टर का कितना डिले हो सकता है, ये सप्लायर का ट्रेडिशनली कितना रिजेक्शन नॉन कॉम्प्रोमाइज है, ये डेटा लेते हैं. एंड साइमल्टेनियसली वी वर्क इट आउट टू सॉल्व इट, बट फॉर रिजर्व स्टॉक प्लानिंग सम पुराना डेटा लिया जाता है, नॉट फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग और इनकमिंग मटेरियल प्लानिंग. हाँ जी बोलिए सर. ये एक सवाल था मेरा कि वो जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, वो जो अपन सप्लायर को दिया है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी अपन वो जो आपने प्रोसेस में है उतना ही पकड़ते हैं ना, स्टोर में कुछ नहीं है. WIP नहीं, WIP जो है वो शॉप फ्लोर में रहता है नॉर्मली. प्रोडक्शन प्रोसेस के आगे पीछे आपको वर्क इन प्रोग्रेस मिलेगा. और जैसे ओंकर ने बोला था, आपने अगर कुछ मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्ट के वहाँ भेजा है, so that is also part of your work in progress. ठीक है सर, थैंक यू. और दूसरा एक पूछना था सर. ये जो लीड टाइम का अपना चर्चा चल रहा था ना, लीड टाइम जो मटेरियल आने के लिए जो लीड टाइम हमने परचेस ऑर्डर दिया है और सप्लायर ने मटेरियल सप्लाई किया, तो ये बीच में क्या होगा लीड टाइम? मतलब ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑफ मटेरियल. that's प्रोक्योरमेंट का होगा. Yes. और आपने दूसरा एक टर्म कॉइन किया है जो प्रोडक्शन लीड टाइम है. Yes. सो वो जो प्रोडक्शन लीड टाइम है वो क्लाइंट के लिए रहेगा ना अपने से? हाँ, आपका कस्टमर आपको जब उनका परचेज ऑर्डर देते हैं वो मिलने के बाद दोनों डिफरेंट कांसेप्ट है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है. वन फ्रॉम द सप्लायर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, अनदर फ्रॉम सप्लायर योर कस्टमर्स पर्सपेक्टिव. एक आपका पर्सपेक्टिव से सप्लायर, आपके सप्लायर के लिए आप कस्टमर हो, और एक है आपका कस्टमर एंगल से जिसके लिए आप सप्लायर हो. कॉन्सेप्ट एक ही है. तो वो अलग है. जैसे वो टाइम समझो किसी क्लाइंट बोल रहा है कि इतने दिन में करो, अपने से नहीं हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं 8 दिन में नहीं 9 दिन में होगा. नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बार्गेनिंग या तो निगोशिएशन अलग बात है. हम लोग बात कर रहे हैं आपको कितना दिन चाहिए आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर टू ship the material. Processing. That is your supplier lead time. That may vary from item to item. ठीक है? तो दोनों तो मिक्स नहीं होगा, दोनों अलग अलग है. हाँ, आपको अलग मतलब वो आपको डिटरमिन करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर थ्रूपुट टाइम, डिपेंडिंग ऑन द लॉट साइज, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. जब अपन क्लाइंट को बताएंगे, समझो अपन के पास स्टॉक नहीं है, जैसे JIT में बहुत सारा स्टॉक, अपन उनसे बोलते हैं कि वो सप्लायर से आएगा डिमांड ड्रिवन इन्वेंट्री जो है, तो वो दोनों ऐड करके क्लाइंट को बताना पड़ेगा ना, प्रोडक्शन का टाइम और उसका टाइम मटेरियल. देखिए एक मिनट. आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो. मुझे पता है कि आजकल कई लोग कस्टमर डिमांड करते हैं, या तो आप डिमांड करते हो कि आपका सप्लायर के वहाँ वेयर हाउस में स्टॉक मेंटेन किया जाए, ताकि ये जो लीड टाइम है ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन टाइम हो. दैट इज डिफरेंट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर यू आर ऑलरेडी एंटर्ड इनटू दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट, यस,
In that case, your lead time, both your procurement lead time and your supply lead time, both will be drastically reduced. No doubt about that. लेकिन मैं जो बोल रहा हूं आपको, it is a concept without maintaining any warehouse stock. ठीक है? हाँ. Yeah. All right. Any other question? Yes, sir.